Okay, dear students, today we are going to study the second chapter of organic chemistry, the part 2 book. The second chapter of the organic chemistry after the haloalkanes is alcohol, phenols and ether. Alcohol, phenols और ethers जो होते हैं, they are very active compounds of your daily life. हम लोग जैसे alcohols हैं, ठीक है? Like we have alcohols where we use them. You may know it. Alcohol जो होते हैं, they are used as a fuels, ठीक है? They are used as a beverages. Phenols, they are the very active compounds of your disinfectant, ठीक है? And ethers are known for their anesthetic properties. Anesthetic properties. तो इन्हीं तीनों के बारे में आज हम लोगों ने इनकी प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, इनके आयुर्वेद सीखने हैं and how they are important to us. Okay. So moving to next one. Next, we are having the first topic is our alcohol. Alcohol is an organic compound that carries a hydroxyl group. ठीक है, ये hydroxyl group होता है आपका OH. अभी जो OH group होता है, that only determines that you have a alcohol in your aliphatic or aromatic compound. पहले हम alcohols की बात कर रहे हैं तो हम aliphatic compound के बारे में बात करेंगे. जैसे you have methanol, you have ethanol. ठीक है, इसके आगे आप और भी चल सकते हो. Then you have CH3, CH2, CH2OH. This is propanol. Suppose I write it in this way. Okay, and I just drop a OH here. So what it will be called? It will be called 2-butanol. Yeah, butane 2-all. Okay, if you don't want to write here, you can write it in butane 2-all. So जो alcohol होते हैं उनका जो main active सिंक कंपाउंड होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आपका OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. और जो अल्कोहल्स के आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों तरह के कंपाउंड्स लिख सकते हैं. राइट, अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ जाऊं तो when you have CH3, CH2OH, this is what? This is first degree that we have studied in class 11. Now if I go with this one, CH and CH3. This is what? Secondary degree. Okay, we are having a second degree carbon here. Now if I go with this one, CH3COH, CH3 and CH3. This is what we have tertiary. So alcohol also carries the first degree, second degree and tertiary carbon compounds. Okay. इसके बाद alcohols के definition के बाद next we are going to study the definition of phenol. कि phenols क्या होते हैं. Phenols भी वही होते हैं जो आपका alcohol होता है, but basic difference alcohol और phenol भी होता है कि alcohols carry the aliphatic chain. Alcohols के aliphatic chain होते हैं, but phenols are the compound in which your alcohol group, your OH group is attached directly or indirectly to your OH, your benzene ring. Sorry, ठीक है. जैसे मैंने ये कंपाउंड बनाया है, ये बेसिकली आपका कॉमन फिनॉल है, ठीक है, इसको हम फिनॉल बोलते हैं. लाइक इफ आई गो विद दिस वे, इफ आई अगेन ड्रॉ वन मोर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बनाते हैं और इसके ऊपर CH2OH लिख देते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए एरोमेटिक अल्कोहल. ठीक है, ये भी एरोमेटिक अल्कोहल है और इसका नाम होगा, यू कैन सी दैट OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. OH is attached indirectly to the benzene ring. It is carrying a carbon before. So we are going to write it benzyl. This I've made it taught in the haloalkanes also. यहाँ पे आप पहले word क्या use करेंगे? Benzyl alcohol. Because our बेंजाइल अल्कोहल और बेंजाइल फिनॉल, ठीक है, तो आप बेंजाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, बेंजाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं. ज्यादा कॉमन डिफरेंसेस. और दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा जो ये ग्रुप है, ठीक है, जो आपका बेंजीन रिंग है, अगर आपके कोई बड़ी चेन के साथ जुड़ा होता है लाइक दिस, ठीक है, तो हाउ यू गोइंग टू नेम इट 1 2 and 3. दिस इज डन. ठीक है, 1 2 and 3. एंड here यहाँ पे आप क्या करोगे, this time this benzene ring is not treated as a main group, it is treated as a phenyl. So I'm going to write it as 3-phenyl, 3-phenyl. And what is this? Propanol. ठीक है,
वन ऑल, ठीक है, प्रोपेन वन ऑल। तो दीज आर द टाइप वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट द फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स की नेमिंग को। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स को डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें बस इतना ही समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना ही समझना है कि जो फिनॉल्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, दे आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, मतलब उनके उनकी चेन में कहीं ना कहीं OH लगा हुआ, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, ईथर्स। ओके, अब ईथर्स के बारे में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ईथर्स क्या होते हैं। ईथर्स आर द ग्रुप विच कैरी द फॉर्मूला ऑफ ROR, ठीक है। व्हाट आर दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स, दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट, लाइक इफ आई राइट इट CH3OCH3, ठीक है। इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, सॉरी सिमेट्रिकल ईथर। वाई सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ जो आपका कार्बन चेन है वो सेम है, CN_C, but it can be unsymmetrical also if I write it in this form, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डबल चेन है, यहाँ पे आपकी सिंगल चेन है, तो ये आपका होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो पहली बात तो मेन फंक्शनिंग ध्यान ये रखना है कि अल्कोहल फिनॉल में OH ग्रुप होगा, अल्कोहल में एलिफेटिक चेन के साथ OH, और फिनॉल्स में बेंजीन के रिंग के ऊपर OH, और ईथर्स में आपका ROR। पहले तो आप लोग फॉर्मूला और उनकी रिप्रेजेंटेशन को सही से समझोगे। सेकेंडली इंपॉर्टेंट ये है कि जो ईथर की जो नेमिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव टू एग्जांपल हियर मेथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है। तो आप जो वर्ड यूज करते हो ईथर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होता है ऑक्सी। लाइक सपोज मैंने एग्जांपल दिया था CH3OCH3, ठीक है। यू आर गोइंग टू कंसीडर वन चेन, दैट इज दिस, ठीक है। एक चेन आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, दैट इज methoxy and one chain is here, that is methane। अब आपको ये कहोगे मैम ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, यहाँ तो चलो दोनों तरफ बराबर था तो हमने कर लिया, लेकिन बाय चांस अनसिमेट्रिकल हो, जैसे CH3 CH2O CH3, तो what we are going to do, we are going to again consider the same IUPAC rule that the longest chain is our main word root। तो सबसे छोटी चेन को आप लिख लो मिथॉक्सी, ठीक है, और जो बड़ी चेन है आप उसको सिंपल नाम दो, जैसे यहाँ पे दो कार्बन के हैं तो वी आर गोइंग टू राइट मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो पहले छोटी चेन और फिर बड़ी चेन, यही हमारा रूल होता है। तो अगेन लाइक फॉर वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू हियर, सपोज दिस आई हैव रिटन मिथॉक्सी प्रोपेन, अगर मैं इसी को लूं मिथॉक्सी प्रोपेन, तो OCH3 इज मिथॉक्सी, ठीक है, एंड प्रोपेन इज CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा मिथॉक्सी एंड प्रोपेन। Here it is written methoxy ethane, तो again OCH3 is methoxy and ethane you can write it in this way। You can just vice versa it, आगे भी लिख सकते हो उसको, लेकिन ये प्रॉपर आपका डेफिनेशन है। तो ये आईपैक को भी करते हुए ईथर को आप अल्कोहल की तरह ही आईपैक नहीं दोगे, ईथर का जो नेमिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओके ना। दिस इज ऑल। नाउ after this we are going to come very important to the some of the questions for IPAC, ठीक है। मैं आपको कुछ questions दे रही हूँ that you are going to try by yourself, ठीक है, I'll give you time for that, और उसके बाद उसका आप अपने answers check करोगे that how much you are able to do the IPAC। Like for example I'm giving you here the first question is written here, CH3 CH3 CH3OH। You're going to try the first IUPAC. The second question for you is this one. Third question for you is just start writing the names of all these questions. ठीक है, just pause the video and you're going to
write the name of these all compounds that I've written on the screen, and then you're going to check the answers of it. Okay. Now, after some time, when you're going to start with the answers, I'm just writing the answers of all the compounds that are given you on the board. I hope you all have written it. Now, suppose this is the first one. The first one, how you're going to do, just we are going to start the nomenclature 1, 2, and 3. You will say, ma'am, why didn't you give it a straight chain? I didn't give it a straight chain because the thing is that our rule is to have the longest chain. Our longest chain is this one. Okay? So, how are we going to write the answer? 2 methyl, 2 methyl. Then we have the prop to all. This is the first answer. Okay. Now, second one, I just told you that when the benzene ring is just at the end of the big chain, we just gave it a name as a phenyl. So 1, 2. So it is 2 phenyl, 2 phenyl. There's 2 carbon. So ethane, 1 all. Okay. Now the next one we come up to. Here, the next one is a benzene ring. The main group is OH. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If I went it anti-clockwise, then the naming would be wrong. Why? Because we are always entitled to use the lowest glucant. सबसे कम नंबरिंग हमें देनी पड़ती है. हम लोग इसमें क्या लिखेंगे अपना 2,5 dinitro ठीक है, and then we have a benzene ring, ठीक है, then we have a dinitrophenol. Okay, 2,5 dinitro, there are 2 nitro groups, then phenol. Okay, this is the third answer. Now if we come to the fourth answer, answer is that you can see 3 OH group here. You can see the 3 OH group and only 2 carbons. So what you're going to write, 1, 2, 1, 2, 2. See, 1 and 2. Okay, 1, 2, 2, try. There are 2 carbons, so ethanol. 1, 2, 2, try ethanol. Okay, but it can also be written as like 1, 2, dihydroxy ethanol. If you write it in this form also, it is not wrong. Okay. So I hope you understood the nomenclature of the alcohols group and ether group. Okay. Now, next one is a slide for your preparations of alcohols. ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग alcohols को लेबोरेटरी में और कमर्शियली कैसे बनाते हैं. तो alcohols को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, that is the first step from alkenes. आपको alcohols कहाँ सबसे पहले मिलते हैं? alkenes से. क्योंकि हम लोगों ने जो alkenes, alkynes पढ़ रखे हैं, ये बेसिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रखे हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड से. तो सबसे पहले हम उसी से लेते हैं जिसके बारे में हम उसको जानते हैं. तो जो एल्कीन्स होते हैं, अगर आप इसका मार्कोनिकॉफ करो, ठीक है, मार्कोनिकॉफ मैंने आपको बता रखा है, दैट इज मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है, दैट द पॉजिटिव एटम इज एडेड वेयर विद द H हाइड्रोजन एटम्स आर मोर एंड नेगेटिव एटम इज एडेड देयर वेयर द हाइड्रोजन इज लेस. तो ये देखो जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको पता है जो आपका H2O होता है वो OH और H नेगेटिव में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में टूटता है. तो जो H पॉजिटिव है that is going to go to a side where it is already H are more, जहाँ पे S ऑलरेडी जा रहा है तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एंड OH वहां जाएगा जहाँ H कम है, यही मार्कोनिकॉफ होता है, ठीक है. इसकी वजह से हमें ये कंपाउंड मिले, ठीक है. जो आपने इसका मार्कोनिकॉफ किया तो आप यहाँ देख सकते हो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला है, मतलब आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिल रहा है. फाइन. Also, we can take one more example.
Like suppose if I write CH3 CH double bond CH2, ठीक है, I wrote it in this way. Now if I did H2O as a what we say as a मार्कोनिकॉफ रॉल, इसका हमने एसिड के प्रेजेंस में हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये H प्लस और OH नेगेटिव टूटेगा। अब यहाँ पे तो H दोनों की तरफ बराबर है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी अ सिंपल फिनोमिना, ठीक है, इस तरह से होगा। फाइन, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH OH CH3, और इसमें दोनों, इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो OH है वो इस वाली जगह पे भी जाके लग सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहीं पे भी आप H और OH को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इस तरह से इनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपको ये देखना पड़ेगा जो पॉजिटिव एडनम होता है, जो पॉजिटिव एडनियम होता है वो आपका जाता है जहाँ पे H प्लस H एटम ज्यादा होते हैं, और जो नेगेटिव एडनियम होता है वो वहां जाता है जहाँ H एटम्स कम होते हैं। तो ये ध्यान रखोगे आप लोग, एल्कीन से अल्कोहल को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस क्या है, आपने सिर्फ एल्कीन की क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयनाइजेशन करने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम द सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आपने, हमने पहले तो पढ़ा कि एल्कीन्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स बनाते हैं, सेकेंडली है वेरी इंपॉर्टेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, या तो एल्कीन्स का क्या कर लिया जाए, सीधे हाइड्रोलिसिस कर लिया जाए तो आपको अल्कोहल मिल जाए, लेकिन अगर आपने एल्कीन को सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ऐसा उसमें ऐड करना पड़ेगा जो उसको सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट करे। तो हमारे पास होता है बोरेन, ठीक है, आपको याद है बोरेन हम लोग इस तरह से लिखते थे, ठीक है, अब इस बोरेन को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ इन्होंने इसको कैसे लिखा हुआ HBH2, बात तो एक ही है ना, ठीक है, बात एक ही है। अब इन्हें क्या करेंगे, अब जो एल्कीन वाला था वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता था, और जो आपका हाइड्रोबोरेशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो में क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ पे एनालाइज करोगे, जो आपका H पॉजिटिव है, तो ये वाला H है, ठीक है, ये वाला जो H है वो आपके जाके लगेगा आपका जहाँ पे H कम है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ में मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, पॉजिटिव एडेनम वहां जाके लगता है जहाँ पे H कम होते हैं, और नेगेटिव एडेनम वहां लगता है जहाँ पे H ज्यादा होते हैं, तो ये वाला नेगेटिव एडेनम माना जाता है और ये वाला लगेगा यहाँ पे, तो आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो ना, ठीक है। अब इसके बाद तो हमने देखा कि मैम अल्कोहल तो कहीं नहीं बना है, अब अल्कोहल कैसे बनेगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हमने अपना मेन रिएक्टेंट, ये हमारा मेन रिएक्टेंट था, इसको हम दोबारा से डालेंगे, ठीक है, जो हमने जिसको ऐसा मेन स्टार्टर रिएक्टेंट लिया था उसी रिएक्टेंट को हमने दोबारा डालेंगे। अब क्या होगा, इन दिस सेंस अगेन वन H फ्रॉम दिस H विल बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डबलिंग हो जाएगी, जो आपका मेन 3 कार्बन कंपाउंड्स का है, और यहाँ पे भी 3 कार्बन कंपाउंड्स आ गए, वो डबल कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 का 2 साइडेड कंपाउंड, CH3 CH CH2, और यहाँ पे लग जाएगा BH, ओके। अब दूसरी बात, फिर दोबारा से अपना मेन रिएक्टेंट डाल दो, मतलब प्रोपीन को दोबारा डाल दो। अब प्रोपीन को दोबारा डाला तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे डबल हुआ था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना था, अब क्या बन जाएगा, टर्श, ठीक है, टर्शी बोरेट बन गया। अब इसके बाद इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपका आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपके प्रोपेनॉल के। आपने स्टार्ट किससे किया था, प्रोपीन से स्टार्ट किया था, तो आपको लास्ट में भी क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 3 मॉलिक्यूल्स थे आपके प्रोटीन के, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको प्रोपेनॉल में 3 मोल्स मिले एंड देन बोरिक एसिड, ठीक। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बस फर्क क्या है, उस वाले एल्कीन से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं मार्कोनिकॉफ के थ्रू, और इस वाले में हम लोग हाइड्रोबोरेशन में दोबारा से
हेडोबोरेन डाइबोरेन डालते हैं और डाइबोरेन को आप क्या करते हो, बार बार उसको डालते हो, उसका सब्स्टिट्यूशन करते हो और वो रूल होता है एंटी मार्कोनी का फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट वन, आफ्टर द नेक्स्ट दिस प्रिपरेशन, ये आपकी पहली और दूसरी प्रिपरेशन थी। अब आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप अपने अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करने के लिए पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं क्या। All the compounds which are carrying C double bond O, like I have aldehydes, I have ketones, mainly I have carboxylic acid. ठीक है, ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, या दे आर कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप्स। अब कार्बोनिल ग्रुप्स को पढ़ाने से पहले आई जस्ट गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, चलो हम लोग उससे अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को मैं साथ में लिख रही हूँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन वन एस्पेक्ट, कि आप अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, डिपेंडिंग, वो मैं आगे बताऊंगी कब क्या मिलता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने से। और एल्डिहाइड और कीटोन का या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। या अल्कोहल का विग्रस ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मतलब एल्डिहाइड, आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में ऑक्सीडेशन से रिलेटेड करते हैं। और हम उल्टा चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन। अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं, फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपस में ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम अगर उल्टा चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड देन अल्कोहल, तो ये आपस में रिडक्शन से रिलेटेड है। नाउ आफ्टर दिस, तो कार्बोनिल ग्रुप में हम लोगों ने ये समझ लिया जिस टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि हम अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को अल्कोहल्स मिलेंगे। ये हमें समझ में आ गया, ये सीधे जाते वक्त आपका ऑक्सीडेशन है और वापस आते वक्त आपका ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं आपके, जैसे पीडी, पीटी, निकेल, ठीक है, ये हो सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे LiLH4 या NaBH4, ठीक है। तो अगर इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि हम लोगों ने क्या उसे कंडीशंस दे रखी हैं उस हिसाब से देखो। तो हम इन्होंने क्या ले रखा है, यहाँ पे प्रोपेनॉल लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रोपेनल लिया हुआ है। प्रोपेनल मींस इट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने इसकी रिडक्शन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, पैलेडियम, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द सेम कार्बन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन दिए थे, तो यहाँ पे भी देखो प्रोपेनॉल बना है, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल क्या करा, रिडक्शन लिया। वैसे ही अगर मैंने प्रोपेनॉल लिया है और मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, तो मेरा क्या बना है, मेरे यहाँ पे आपका सेकेंडरी, यहाँ पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना है, ठीक है। इट इज नॉट रिटन CH हियर, बट आई शुड हैव रिटन CH हियर। तो यहाँ पे CH3, CHOH एंड CH3, इसको आप क्या बोलोगे, 2 प्रोपेनॉल, फाइन। तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हमें इतना समझा कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स द रिडक्शन। तो हम जो एल्डिहाइड से अल्कोहल दोबारा बना रहे थे, हमने रिडक्शन किया, पहले ये समझा। उसके बाद हमने क्या समझा कि हमें कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने के लिए है वो ये है कि आपके जो एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, एंड जो आपके कीटोन्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे H लिख देना, ठीक है। तो ये रूल याद रखना है, प्रोपेनल ऑन रिडक्शन, ठीक है, मैं सब जगह पे नहीं बोल रही हूँ, ऑन रिडक्शन फॉर्म्स द प्राइमरी अल्कोहल, योर एल्डिहाइड्स। Aldehydes on reduction forms the primary alcohol and ketone on reduction forms the secondary alcohol. Clear? तो ये हमारा तीसरा प्रिपरेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं डायरेक्ट कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी वही सेम है, मैंने अभी बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये दे आर आल्सो कार्बोनिल ग्रुप कैरिंग C डबल बॉन्ड OOH। तो अगर मैं
इनका विग्रस रिडक्शन करो, ठीक है, कैसा था, OH था, उसके बाद CHO या /CO था, फिर COOH था। तो अगर मैं इसका विग्रस रिडक्शन करूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiLH4 या कैटालिटिक रिडक्शन करूं, ठीक है, तो मेरा जो एसिड्स हैं, जो मेरी एसिड्स हैं या मेरा एस्टर है, एसिड के साथ साथ और किसको इंक्लूड करा है, एस्टर को, ठीक है। एस्टर कौन से होता है याद आ रहा हो तो RCOOR ये ग्रुप होता है। तो अगर इनकी विग्रस रिडक्शन करी जाती है तो आपका जो एसिड्स होते हैं और जो ईस्टर होते हैं वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में बदल जाते हैं, मतलब सेम कार्बन होता है। तो जितना कार्बन आपने अपने एसिड में लिया है उतना ही कार्बन का आपका अल्कोहल बनेगा, सेम स्टेप, ना स्टेप डाउन होगा ना स्टेप अप होगा। जितने कार्बन आपने, तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉप लिया है तो यहाँ पे आपका प्रॉप बनेगा। यहाँ पे आपका मिथाइल प्रोपेनॉल था, ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझाते हैं। यहाँ पे आपका मिथाइल प्रोपेनॉइट है, तो आपका क्या करेगा, जो मेन आपका होगा, यहाँ से देखो एक क्लीवेज यहाँ से हो रही है CH3OH, और एक क्लीवेज यहाँ से हो रही है CH3CH2 CH3CH2 CH2OH। तो जितने कार्बन होंगे आपके मेन फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर साइड चेन में, जैसे इसको दोबारा समझाते हैं। जैसे आपका RCOOR है, तो एक तो ये वाला लेके जाएगा आपका, ठीक है, ये बनेगा ROH, ठीक है। सपोज यहाँ पे R डैश है तो ये बनेगा R CH2OH। तो दो आपके अल्कोहल ऑब्टेन होंगे, फाइन। तो आपने बस क्या करना है, चेन को ब्रेक करना है। बट एक टोटल आप देखोगे तो कार्बन दोनों तरफ कार्बन की जो चेन है दैट इज सेम, लाइक हियर यू हैव 3 कार्बन तो हियर यू हैव 3 कार्बन, हियर यू हैव 1 कार्बन तो हियर यू हैव 1 कार्बन। टोटल कार्बन रिलेटिव टू प्रोडक्ट साइड बड़े होंगे, सेम होंगे, आपको वहां पे कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दिखेगा। तो अब अल्कोहल से हम लोगों ने इनकी प्रिपरेशन पढ़ ली है, ठीक। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम Grignard reagent। दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन कि Grignard reagent से भी हम अपना अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं Grignard reagent क्या होता है। येलो एलिफेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। RMGX is called a Grignard reagent. Fine. This Grignard reagent is very important क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। लाइक आप क्या करोगे इसमें, आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन डालो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक CH3C double bond OCH3. I hope you know what is this. This is a ketone group and this is propanol या एसीटोन, दोनों वर्ड बोलते हैं। इसमें आपने डाला CH3MgCl डाला, मतलब ये आपका क्या है, एक Grignard reagent है। ये Grignard reagent है। Grignard reagent के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इट कैरीज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो कार्बन होता है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और जो ऑक्सीजन होता है उसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या होगा, जो ये CH3 है, it is going to attach with this carbonyl group and this MgCl is going to attach with this O group। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COMgCl, और ये वाला जो CH था ये वाला वो यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो था वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करिए, इसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलेगा, CH3C, ये जो OMgCl है हाइड्रोलाइज होकर OH बन जाएगा और जो जैसा था वो वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। तो Grignard से भी आप अपना अल्कोहल बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन मतलब क्या, कि देखो आपने कितने कार्बन लिए थे अपने मेन रिएक्टेंट में, 3, और एक कार्बन एक्स्ट्रा आपका Grignard reagent से आया, तो अब आपके देखो चेन भी बढ़ जाती है। आपके कितने टोटल कार्बन हो गए, जहाँ 3 थे अब वहाँ पे 4 हो गए, क्योंकि एक R जो था ये एक एल्काइल ग्रुप था, वो हमें MgCl या Grignard reagent से भी मिला है। इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ने RMgX डाला। RMgX आप क्या करेगा, आपको पता है जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट ग्रुप होता है, 4 बॉन्ड्स होते हैं उसके चारों तरफ। तो यहाँ पे ये डैश डैश का मतलब है कि कोई ग्रुप और लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है।
तो ये जो R वाला ग्रुप है दैट इज एंटर्ड हियर दिस साइड, और जो MgCl है ये O के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये OMgCl, ये X मींस हैलोजन, X क्या हुआ आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन ग्रुप यहाँ बन गया। अब इसके बाद जो आपका ये ग्रुप बना है, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करा, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, तो जो ये था ये हाइड्रोलिसिस होके OH बन गया और रेस्ट आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गया। फाइन, सो दिस वाज ऑल द प्रिपरेशंस ऑफ योर एल्कोहल्स, कि हम लोग एल्कोहल्स कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन द रिवीजन, कि हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल्स की प्रिपरेशन। सबसे पहले एल्कोहल की प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी एल्कीन से, ठीक है, ओके, हमने एल्कीन से पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी, सीधे हाइड्रोलिसिस करके पढ़ा था। फाइन, इट्स बेटर आई शो द स्लाइड फर्स्ट, आपको स्लाइड सिखाते हैं ताकि आपको रहे। ओके, तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अल्कोहल पढ़ा था, आपने एल्कीन से बनाया था, सिंपल एल्कीन का आपने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था। उसके बाद आपने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन से, आपने कोई भी अपनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी, उसको एंटी मार्कोनिक से फॉलो किया था, और देन यू फॉर्म द सेम चेन प्रोपेनॉल, अल्कोहल बनाया था। नेक्स्ट आपने कार्बोनिल ग्रुप पे पढ़ा, मैंने इसे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि आप क्या करोगे इसमें, अपना कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो आपका रिडक्शन करने पे अल्कोहल बनाता है, ठीक है, अल्कोहल रिडक्शन करने पे बनाएगा, उल्टा वापस जा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। इसके बाद हमने एसिड से भी अपना अल्कोहल बनाया था रिडक्शन करके, और एस्टर से भी रिडक्शन बनाया था। ये दोनों ही जो रिएक्शन थे ये सेम स्टेप रिएक्शन थे, कि जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में थे उतने ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में है। नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड लास्ट वाज फ्रॉम विग्नार्ड रिएजेंट। विग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgCl लिखा हुआ है यहाँ पे, RMgX, ठीक है। तो RMgX क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करता है, उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इनहेल करता है, और उसके बाद उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, और बॉन्डिंग बनाने के बाद हाइड्रोलिसिस हम जब करते हैं तो हमें हमारा अल्कोहल मिलता है। इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी मैंने बताई थी कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, हम सेम स्टेप में चलते हैं, ठीक है, नॉट विद विग्नार्ड रिएजेंट। सो दिस वाज ऑल। Now we are going to we have end up the preparations of your alcohol. Now we are going to start with the preparations of your phenols. अब phenols को बनाना बहुत important और बहुत easily होता है। phenols आपको पता है aromatic group है, मतलब वो benzene carrying एक compound है, तो obviously हम लोग benzene से start करते हैं। अब जैसे आप लोग देख लो पहले यहाँ पे है from benzene sulfonic acid। पहले बात तो ये benzene sulfonic acid आई कहाँ से, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बेंजीन का आप सल्फोनेशन करते हो, ये वर्ड आपने पहले भी क्लास 11th में पढ़ा है, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन करते हो तो SO3H ग्रुप इस पे लग जाता है, ठीक है, आपकी जो एसिड होती है वो डिसोसिएट होती है और इसमें SO3H लग जाता है। अब SO3H जब लग जाता है तो आप उसकी हाइड्रोलिसिस करिए, उसमें NaOH डालिए, वार्म NaOH डालिए, हाइड्रोलिसिस करिए साथ साथ में, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट दैट इज योर OH। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फिनॉल। हमने स्टार्ट किया था बेंजीन से, बेंजीन की सल्फोनेशन करने के बाद हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाई थी, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की के बाद हमने उसको एक बेस से रिएक्ट कराने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया सेकंड स्टेप में, तो हमारा क्या बन गया, फिनॉल। दिस यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपर्ली। Now, the second preparations of your after this is your from हेलोवेरियंस, ठीक है। तो फिनॉल्स हम लोगों ने बनाए पहले तो बेंजीन और सल्फोनिक एसिड से, उसके बाद हम लोग एक हम क्लोरोबेंजीन अगर हमारे पास आती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्लोरोबेंजीन आप कुछ मत करो, आप उसको नॉर्मली NaOH डायल्यूट NaOH से रिएक्ट करा दो, आपके पास जो मटेरियल बन के आएगा दैट विल बी अ सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू अटैच टू हियर ONA, यहाँ पे लिख जाएगा ONA, और ONA का हाइड्रोलिसिस करोगे इन द एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू OH। फाइन, तो क्लोरीन को अगर आप NaOH के साथ
warm up करते हो at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, it is firstly converted into sodium phenoxide. Then the presence of acid, it is converted into phenol. तो ये इसकी सेकेंड प्रिपरेशन है. पहली प्रिपरेशन बेंजीन से करवाई थी या सल्फोनिक एसिड से करवाई थी और दूसरी प्रिपरेशन इसकी क्लोरोबेंजीन से करवाई. नाउ नेक्स्ट वन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या है. डाइजोनियम सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स दैट वी बेसिकली यूज इन द फॉर्म ऑफ डाइज. जो हम डाइज यूज करते हैं इसके लिए होता है. तो जो ये डाइज होते हैं दे आर मेनली द डाइएजोनियम सॉल्ट. और ये कहाँ से प्रिपेयर करते हैं. जैसे हम लोग का बेंजीन के ऊपर OH लगाते हैं तो उसको फिनॉल बोलते हैं. तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगता है मतलब अमोनिया का डेरिवेटिव लगता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एनिलीन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एनिलीन. अब एनिलीन में अगर आपने सोडियम नाइट्रेट डाला और उसको एसिड के बेसिस में डाला इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. मतलब बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप लग गया N2Cl. ठीक है, अब इस N2Cl का आपने हाइड्रोलिसिस किया. इन N2Cl का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो वो क्या बन गया फिनॉल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फॉर योर फिनॉल्स. ठीक है, फ्रॉम एनिलीन. पहले बेंजीन से करी फिर दूसरी क्लोरोबेंजीन से करी है और तीसरी अब किससे कर रहे हैं एनिलीन से. बस आपको इनके रिएजेंट्स लर्न करने कि क्या डालने से हमारा क्या बन रहा है. तो जो मेन इसके N2Cl थे जो इसके यहाँ पे टॉप पोजीशन पे लगे हुए थे वो एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें से निकले हैं. तो अगेन रिपीटिंग आपने एनिलीन लेना है. एनिलीन में आपने Na2HCl डालना है. वो N2Cl के रूप में आपको मिलेगा दैट इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड. आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा फिनॉल. क्लियर. Now the last one is the chemical preparation of your phenol. केमिकल प्रिपरेशन मतलब या सॉरी कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब जो आप उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल फॉर्म में हम बनाते हैं या हम उसको बिजनेस के रूप में करते हैं ताकि इट इज़ yielded in a high quantity in the large quantity. तो हम उसको बोलते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन. तो कमर्शियल प्रिपरेशन का जो एक मेथड है दैट इज योर फ्रॉम क्यूमिन. अब क्यूमिन किसे कहते हैं. क्यूमिन इज नथिंग न्यू फॉर यू. एक क्यूमिन तो उसका कॉमन नेम है. जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है. देखिए आइसोप्रोपाइल है ना. यू कैन जस्ट नेम आउट इट. आइसोप्रोपाइल कंपाउंड है. आइसोप्रोपाइल कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूमिन. बोर्ड्स में आता है कन्वर्ट क्यूमिन इनटू फिनॉल. तो क्यूमिन से बच्चे भूल जाते हैं क्यों है क्या. तो क्यूमिन क्या है आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम है. तो आपने क्या करा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अंडरगोज द योर ऑक्सीडेशन इन अ विगरस स्टेट. बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है. तो सेकेंडली आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो कंपाउंड बनता है इट इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, एसिड का फॉर्म बन गया क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड. इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड. इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा. देखो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो दिस फुल कंपाउंड इज went like this. This is eliminated and you get the phenol. ठीक है, आपका एसीटोन बाहर निकल जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट. ये आपका एसीटोन है और एसीटोन आपका जब बाहर निकल जाता है तो दिस कन्वर्टेड इनटू फिनॉल. Okay, so this was all the preparations of your alcohol, phenols, and you have to revise them, learn them, all the reactions very properly, and you have to seek out it after adding which agent to the main reactant, how you get the alcohol out. Okay, after this, after reading the preparations of alcohols and phenols, now we are going to come to the next topic, that are physical properties of alcohol. Alcohols are very interesting physical properties क्योंकि alcohols के अंदर सबसे important क्या चीज होती है कि it can form the hydrogen bond, and you know that hydrogen bonding is the strongest bonding. Okay, and hydrogen bonding is very much related to your solubility and your boiling point. So now we are going to study this one. अब इसको पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला पॉइंट तो यही है जो एलोए अल्कोहल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, और जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द चेन, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग इन द होमोलोगस सीरीज, वी गेट द हायर अल्कोहल्स आर सॉलिड.
जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं कम कार्बन वाले होते हैं वो लिक्विड होते हैं, जो ज्यादा कार्बन वाले होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर वेरी हाई। हाई टू व्हाट? अभी तक आप लोगों ने अगर क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो तो आप जानते हो एल्केन के बारे में, आप जानते हो एल्कीन के बारे में, आप जानते हो एल्काइंस के बारे में, और अभी 12th में आके आपने जाना हेलो एल्कीन्स के बारे में, ठीक है, RX एंड C6H5X, ठीक है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। अगर मैं इन सबसे कंपेयर करूं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द सेम as compared to the hydrocarbon or your haloalkanes or haloarenes of the same comparable molecular mass, ठीक है। तो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों? जैसे सपोज मैं लूँ CH3Cl और मैं लूँ CH3OH, ठीक है, तो इनका जो होमोलोगस यूनिट है वो एक ही है, मिथ, ठीक है, पर फर्क क्या है आपका Cl का और OH का। तो दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली आपका हेलो एल्कीन का कम आएगा और आपका मीथेनॉल का या अल्कोहल का ज्यादा है। अब ऐसा हुआ क्यों? अब इसका रीजन क्या है इसके पीछे कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई। तो वो ऐसा होता क्यों है? दिस इज बिकॉज दे फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, ONH, ठीक है, एंड यू नो द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, सॉरी द हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्ड with the element which has more electronegative nature than its। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको वॉलेटाइल करने में, वॉलेटिलिटी में, इसको उबालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज द सेम अल्कोहल एज अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ये भी हमने क्लास 11th में कंसेप्ट पढ़ रखा है कि अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज करती है, ब्रांचिंग मतलब आप अपने जो फंक्शन ग्रुप्स है उसको आप कार्बन के चारों तरफ लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज करती है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो जो रूल हमने क्लास 11 में पढ़ा था वही रूल यहाँ पे चलेगा। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। दो पॉइंट होते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्योंकि आप एक एक होमोलोगस यूनिट आगे बढ़ते जा रहे हो तो कार्बन का मास जो होता है, टोटल कार्बन का मास बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, लेकिन अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? जैसे अगर मैं कंपेयर करूं आपके सामने, सपोज आई टेक योर CH3OH, ठीक है, सपोज नॉट CH3, आई टेक this one I take, ठीक है, and in other respect I take this one, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये टर्शियरी कंपाउंड है, ये प्राइमरी कंपाउंड है, ठीक है। टर्शियरी कंपाउंड है, इसमें आपकी देखो ब्रांचिंग ज्यादा हो गई है, तो ब्रांचिंग अगर बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और सरफेस एरिया अगर कम हो जाता है तो उसको बॉइल करना इजी है, क्योंकि क्रिस्टल लैटिक्स में इतना क्लोजली फिट नहीं बैठता है। हम लोग लिख सकते हैं कि primary degree has a highest boiling point, secondary degree has a lower, and the three degree has a lowest boiling point। अगर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ये नहीं कि एक में तो 2 कार्बन है एक में 10 कार्बन है तो डिफरेंट करेगा। सबसे पहले बात होता है मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबली सेम है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जितनी ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा तो कम आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक। उसके बाद लोअर अल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। अब जैसे लोअर अल्कोहल्स हैं वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं तो वो पानी में सॉल्युबल होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। क्लास 11 कंसेप्ट अगेन, ठीक। तो अगर आपका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, फाइन,
तो इसका मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो अपने वाटर के साथ बना रहा है, तो वो पानी में सॉल्युबल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी चेन में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे आप लोअर अल्कोहल से हाई अल्कोहल्स में आते जाओगे, तो आप देखोगे कि मास बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। और जब मास बहुत ज्यादा बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक। उसके बाद अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू द लोअर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। पहली बात, एसिड्स क्या होती हैं? जो H प्लस रिलीज करती है। अब आपके अल्कोहल में OH ग्रुप है, ठीक है, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन दिस। तो जो H का जो डिस्पर्सल होता है वो यहाँ पे इतना आसानी से नहीं हो पाता, और जब कोई चीज H इतनी अच्छे से नहीं देती है तो वो वीक एसिड होती है, ठीक है। जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए H प्लस को, रिलीज कर दे H प्लस को, हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते थे। तो लेकिन जो OH है, यहाँ पे H जरूर प्रेजेंट है अल्कोहल में, बट वो इतना इजीली अपना H डिस्पर्स आउट नहीं करता। इसलिए अगर हम लोग अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करें, if I compare alcohol with the water, then alcohols are weak acid as compared to your water. Water is a strong acid. वैसे ही water amphoteric है, ठीक है। So these are the four five points that are written here कि physical properties alcohol आपके लिए कैसे हैं. Repeating, low alcohol liquid है, high alcohol solid है. अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जिसके वजह से वो अभी तक जितने भी आपने कंपाउंड्स पढ़े हैं उनके हिसाब से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। लोअर अल्कोहल्स जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती जाती है, मास बढ़ता जा रहा है। दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में आपका प्राइमरी ग्रुप जो होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज कम्पेयर टू द टर्शियरी वन बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तीसरा, जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता जाए, सॉरी जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया घट रहा है। फाइन। और आपका अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करें, अभी हमसे दो कंपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल और वाटर। तो अल्कोहल इज अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो अपना H प्लस इतनी इजीली डिस्पर्स नहीं कर पाता, हम उसको वीक एसिड के रूप में मानते हैं। So this was all the physical property of your alcohols. Now next we are going to come the physical properties of phenols. कि phenols क्या होते हैं? तो phenols are the colorless liquid or crystalline solids but become colored due to slow oxidation with the air. स्टार्टिंग में ये भी अल्कोहल की तरह कलरलेस होते हैं, पर जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आते हैं उनके कलर चेंज हो जाता है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो फिनॉल का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग कंपैरेबल मासेस वाले एलिमेंट से या कंपाउंड से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वहां पे हेलो एल्कीन्स को कंपेयर किया था अल्कोहल से, तो नाउ आई विल बी कंपेयरिंग sorry. Now here I will be comparing, like suppose if I compare here chlorobenzene and I compare phenol, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने ही साथ वाले डेरिवेटिव से ज्यादा होगा, क्योंकि अगेन ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा बट नॉट दिस वन, ठीक। तो अगर आप अपने ही डेरिवेटिव से उसको कंपेयर करोगे फिनॉल को, तो फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जितने हमने अभी तक पढ़े, ठीक है, हमने अगर बेंजीन एरोमेटिक ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो हमने हेलो एरीन्स ही पढ़ा हुआ है। तो अगर आप उनको हेलो एरीन्स से कंपेयर करोगे, एराइड हैलाइड से कंपेयर करोगे, तो हेलो एल्कीन जो फिनॉल्स होते हैं वो ज्यादा आपके उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होता है, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है। बट बेंजीन में आपका जो ग्रुप होता है, ये जो बेंजीन का ग्रुप होता है OH के साथ जो ये C6H5 का मास लगा है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। तो जो फिनॉल्स होते हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो ये C6H5 है ये उसको पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होने देगा। क्लियर? फिनॉल जो होते हैं they are stronger acids than your
एल्कोहल्स, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा समझेंगे। जब हम लोग एक फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिनॉल बना रहे हैं यहाँ पे, तो जो ये कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके वजह से जो ये OH यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ जो OH ग्रुप होता है, that is very strongly bonded with the benzene ring, that is strongly bonded with the benzene ring। तो अगर हम फिनॉल से पूरा OH ग्रुप निकालना चाहे तो इट इज वेरी क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसको निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि O जो होता है वो कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जिसके वजह से उसको एक्सिट आउट करना इज नॉट इजी थिंग। इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके O के ऊपर, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, जो आपके पूरे ऊपर रिंग पे, ठीक है, वो पूरी रिंग पे आके क्या करेगा, पूरी रिंग पे डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसको भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा समझें। फाइन। और जो फिनॉल होता है, जो फिनॉल होता है, ठीक है, जो फिनॉल होता है वो बनाता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, दिस फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन क्यों? क्योंकि H को डिस्पर्स करना तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन O जो है वो कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके वजह से वो डिस्पेल आउट नहीं हो पाएगा, एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, और वो अपने बेंजीन रिंग से अटैच रहता है। H निकलने के बाद ये आपका फिनॉल था और ये होगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड ion, it undergoes resonance because of the delocalization of the electron, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना था। जो चीजें अभी एडअप मैंने बोली हैं वो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा पढ़ा, ठीक। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे और इसके डिस्टिंग्विश टेस्ट में आएंगे, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने नेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है, देखो इसकी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता रखा है कि देखो जैसे ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन बना क्योंकि H निकल गया, इसके इलेक्ट्रॉन देखो डीलोकलाइज हो जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो ये क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से डीलोकलाइज हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पर आ गया पैरा पोजीशन पे, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, वो यहाँ पर आ गया, फिर ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर दे रहा है, इसने यहाँ पर दे दिया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये वापस अपने पुरानी जगह पे चला गया। इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं, जो हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी देता है। जितना ज्यादा हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि जितना ज्यादा जो आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सो दिस वाज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर फिनॉल्स।